Thank you very much for coming. We just want to take a short time. आप सबको अपडेट करना चाह रहे हैं MD CAT का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है, रिजल्ट्स आर आउट. Total number 125,663 had registered. 121,621 sat the exam. 67,924, 55.85% have passed, getting more than 60%. یہ وہ بچے ہیں اب جو کہ کوالیفائی کر گئے ہیں ٹو گیٹ ایڈمیشن کسی بھی میڈیکل یا ڈینٹل کالج میں پاکستان میں، انکلوڈنگ پرائیویٹ، پبلک، آل کیٹیگریز. ان کے علاوہ کوئی بچہ میڈیکل کالج میں نہیں ایڈمٹ ہو سکے گا. ایز یو آر اویئر دیر واز اے سلائٹ ایشو. رزلٹ ہم نے 16 تاریخ کو ریلیز کیا. اس کے بعد ہم نے وہ رزلٹ آف لائن کر دیا، اس کی ری ویریفیکیشن کروائی اینڈ دین اٹ واز براٹ بیک آن لائن یسٹرڈے. اس کی وجوہات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وائی وی ہیڈ ٹو ڈو دیٹ. رزلٹ اپ کرنے کے بعد ود ان اباؤٹ 8-10 آورس ہمارے پاس کمپلینٹس آ گئیں کوئی تقریباً 300 کے قریب، جس میں بچوں نے کہا کہ جی ہم ایبسنٹ مارک ہو رہے ہیں رزلٹ میں، مگر ہم بیٹھے تھے ایگزام میں تو ہمارا رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا اس سے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی تقریباً کوئی 40 کے قریب کمپلینٹس آ گئیں بچوں کی کہ جی میرا رول نمبر صحیح ہے بٹ نام میرا صحیح نہیں آ رہا اس کے سامنے. سو وی امیڈیٹلی ڈیسائیڈڈ کہ دا بیسٹ تھنگ از ڈاؤن کریں اس کو، آف لائن کریں اینڈ اس کو ہم سے ری ویریفائی کر دیں. جو ہمارا ایگزامینیشن سسٹم ہے فار دا فرسٹ ٹائم دس از اے کمپلیٹلی کمپیوٹر جنریٹڈ سسٹم تھا. یہ آپ کا جو پیپر تھا OCR مشین پہ چیک ہوا، اسی سے کاؤنٹنگ ہوئی، اسکورنگ ہوئی اینڈ تھرو دا کمپیوٹر سسٹم سارا کا سارا رزلٹ بن گیا. وین وی ری ویریفائڈ، بیکاز بات سامنے تھی کہ بچے ایبسنٹ آ رہا تھا، رزلٹ میں ایبسنٹ بالکل لکھا تھا مگر وہ بچے ایگزام میں بیٹھے تھے، تو اس کو ہمیں فزیکلی اب آف لائن کر کے فزیکلی ویریفائی کرنا پڑا. سمجھ آ گئی اس میں ایرر کیا تھا. کمپیوٹر سسٹمز ہوتے ہیں، انفارچونیٹلی ہر چیز نہیں سوچی جا سکتی، اور وہ کمپیوٹر سسٹم کا ایک پرابلم آیا. اسینشلی ہوا بڑا سمپل. یہ ٹوٹل اپروکسیمیٹلی 625 کیسز تھے. آؤٹ آف 1,21,000 میں سے یہ 600 کیسز تھے. یہ وہ بچے تھے جنہوں نے اب جو اپنی آنسر شیٹ ہوتی ہے اس کے اوپر رول نمبر غلط لکھ دیا. سو میرا رول نمبر 123 تھا، ایک بچے کا رول نمبر 124 تھا. میں نے 123 لکھا، اس بچے نے بھی غلطی سے اپنی آنسر شیٹ پہ 123 لکھ دیا. کمپیوٹر نے جب پیپر چیک کیے، اس نے 2 پیپر چیک کیے، دونوں کو سکور کیا مگر دونوں کا رول نمبر 123 تھا. اس نے جو میچ کیا اپنے سسٹم میں کہ 123 کا نام کیا تھا رجسٹریشن میں، اس نے اس کا رزلٹ اناؤنس کر دیا. جو دوسرے بچے کا غلط رزلٹ آ گیا وہ اس نے سائڈ پر رکھا، اور 124 کا کیونکہ اب اس کے پاس رزلٹ نہیں آ رہا تھا اس نے ایبسنٹ کر دیا. یہ کمپیوٹر نے کیا. سو ہمیں جا کے ہم نے بالکل وہ سارے بچوں کے رزلٹس نکالے واپس، ہم نے ان کے ایڈمٹ کارڈز نکالے، ان کی رجسٹریشن نکالی، میچ کیا اینڈ دین دا ریزلٹس ور پٹ بیک اپ. اس کے علاوہ تقریباً کچھ کیسز ہمارے پاس تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے نام کا فرق آ رہا. وہاں پہ بھی انفارچونیٹلی آئی ایم ناٹ بلیمنگ اینی ون، بٹ ہوتا ہے امتحانوں میں. اور آئی تھنک 1,21,000 میں سے اگر 100-150 بچہ یہ کر دے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کا جو رجسٹریشن ہوئی تو رجسٹریشن CNIC کے حساب سے ہوتی ہے. CNIC کے حساب سے نام تھا محمد علی رضا لیٹ سے میں، بٹ جب میں نے اپنی وہ آنسر شیٹ پہ لکھا تو میں نے علی رضا لکھ دیا. کمپیوٹر امیڈیٹلی اس کو کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میچ نہیں کر رہے. تو انہوں نے کمپیوٹر نے یہ کیا کہ ہم نے اس کو آپشن یہ دی تھی، کمپیوٹر میں ڈالا ہوا تھا سسٹم میں کہ بھائی جو بھی ببل شیٹ کے اوپر یعنی آنسر شیٹ کے اوپر آئے گا وہ اس نے پروڈیوس کرنا ہے. اس نے وہ پروڈیوس کر دیا، میچ ان میچ ہو گیا نام. وہ بھی ہم نے سسٹم ٹھیک کر دیا. وہ تقریباً 150 کے قریب کیسز تھے. ان بچوں کی بھی کمپلینٹس ہیو بین ریکٹیفائڈ. اس پروسیس میں ہمارے پاس کچھ اور کمپلینٹس آئیں. کچھ بچوں نے ہمیں کہا کہ جی وہ ہمیں 14 نمبر نہیں ملے. کچھ نے کہا کہ جی وہ پتہ نہیں ہمارا D پیپر تھا، ہمارا B پیپر تھا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. وہ بھی ہم نے کہا جی وہ بھی ہم چیک کر دیتے. تو اس لیے اصل میں ٹائم تھوڑا سا زیادہ ہم نے لگایا، 36 گھنٹے اپروکسیمیٹلی ہمیں لگے. ہم نے پوری ری ویریفیکیشن کر دی.
ठीक है। तो वो पूरे इम्तिहान की हमने एक्चुअली रीवेरिफिकेशन भी कर डाली है एंड वी कैन कॉन्फिडेंटली नाउ स्टेट कि इम्तिहान इज़ नाउ एक्सेलेंट रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट है। वी आर हैप्पी टू हैव एनीबडी हैव इट रिकाउंटेड। बेसिक इशू ये है कि बच्चों को 2-3 कन्फ्यूजन है वो मैं दूर कर दूँ। सबसे पहले हमारे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि जी हमने खुद ही पेपर अपना चेक किया है, जो उनके पास पेपर था नहीं बट हमने चेक किया है और हमने रिजल्ट निकाला है। ये हमें मिले, ये अकेडमीज़ ने अजीब व गरीब अपने हाथ से बनाई हुई सो कॉल्ड डॉक्यूमेंट्स पब्लिश कर दिए हैं और इन बच्चों को भेज दिए हैं और इनको कहते हैं ये कीज़ है। ये बिल्कुल गलत काम है, ये इलीगल काम है और ये फ्रॉड है इन बच्चों के साथ। ये अकेडमियां हैं, ये वो अकेडमियां हैं जो इन बच्चों से पैसे लेती हैं पहले इनको पढ़ाने के लिए, उसके बाद इनको ये कीज़ बना के दे देती हैं और इन बच्चों को बेचारों को प्रेशर में डाल रही हैं। ये बच्चे इस तरह की कीज़ इस्तेमाल करके कह रहे हैं कि जी हमारा नंबर तो 180 होने चाहिए थे, रिजल्ट में आ रहा है 160 होने चाहिए थे। जो पेपर दिया है वो एग्जैक्टली चेक हुआ है। वो हमने उसकी वजह से एक और काम किया है, हमने फॉर्म लगा दिया है। 6,000 हमारे पास ये 5,000 एप्लीकेशंस आ भी गई हैं एक दिन में, 10,000 हो गई हैं, अब 10,000 हो गई। हमने खुली छुट्टी दे दी हर बच्चे को कि जी जो मर्जी बच्चा अपना इम्तिहान का पेपर रिकाउंट कराना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। मेरी तरफ से 1,21,000 चेक करवाना चाहता है करवा ले। दैट इज हाउ कॉन्फिडेंट वी आर। 1,21,000 चेक करवाना चाहता है आखिर रिकाउंट करवा ले, फ्री में कर रहे हैं। ये भी हम अश्योरिटी दे रहे हैं। और इसकी वजह से दे रहे, सिर्फ इसकी वजह से दे रहे कि आज के बाद ये एकेडमीज और ये लोग जो ज्यादतियां कर रहे हैं बच्चों के साथ, ये बंद करें। इन बच्चों को गलत फहमियों में मत डालें। इम्तिहान है, दुनिया में कहीं ये नहीं होता कि एमसीक्यू के पेपर को इस तरह से खोला जाता है, बट हम कर रहे हैं ये ताकि ये कल्चर खत्म हो जाए फ्यूचर के लिए। और इन बच्चों को अपने इम्तिहान पे अपना हौसला होना चाहिए। हमने पेपर दिया, जो भी रिजल्ट है वो सही है, सिंपल बात ये। दूसरी चीज, इसके अलावा बच्चों ने कहा कि जी आपने हमें 14 नंबर नहीं दिए। मैं 14 नंबर भी एक्सप्लेन कर दूं क्या था। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। जब भी आप एमसीक्यू का इम्तिहान देते हैं उसके बाद एक पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होता है। जब पेपर्स चेक हो जाते हैं उसके बाद एक एनालिसिस होता है, लोग बैठते हैं। बहुत मुख्तलिफ इंडिकेटर्स होते हैं, एम्बिग्विटी इंडिकेटर्स होते हैं, डिफरेंशियल इक्वेंटर्स होते हैं। कोई सवाल है, 90% बच्चों ने गलत जवाब दे दिया, सवाल ठीक है, 90% बच्चों ने गलत दे दिया। वो सवाल फौरी निकाला जाता है, कमेटी बैठती है, उसको कंसिडर करती है कि ये सवाल फॉर्मेट किस तरह हुआ है, क्या ये जिस तरह से लिखा गया था क्या इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, कोई एम्बिग्विटी आ गई है जिसकी वजह से 90% बच्चे गलत कर गए। वो कंसिडर किया जाता है। अगर कमेटी ये फील करती है एक्सपर्ट्स की कि हाँ इसके अंदर कोई इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो गए कि एम्बिगुअस हो गया, वो क्वेश्चन निकाल दिया जाता है। आज तक आपने जितने इम्तिहान देखे होंगे किसी ने आपको खुल के एग्जामिनिंग बॉडी ने नहीं बताया कि पोस्ट एग्जाम एनालिसिस में क्या किया गया। हमने वो भी आपको खोल दिया। 14 सवाल हमें मिले 29 नवंबर के इम्तिहान में, जिसको बेस्ड ऑन जो जवाब दिए थे बच्चों ने वो एम्बिगुअस कैटेगरी या डिस्क्रिमिनेटरी कैटेगरी में आए, उनको हमने निकाल दिया। निकालने के बाद हर बच्चे को वो 14 नंबर दे दिए गए, कोई ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। ये कंफ्यूजन है, बच्चे समझ रहे हैं ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए। सब बच्चों को क्योंकि एक ही लेवल पे लाना था, सारे 14 सवालों के 14 नंबर हर बच्चे को दे दिए गए। ये किया गया। एक 13 का जो इम्तिहान हुआ उसका भी पोस्ट एग्जाम एनालिसिस हुआ है, उसमें 7 सवाल हैं जो निकाले गए, सब बच्चों को 7 नंबर दे दिए गए। सो एवरीबडी इज ऑन द सेम लेवल, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरा कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है और ये ज़्यादातर सोशल मीडिया पे अगेन ये अकेडमीज वगैरह कर रही हैं कि जी वो मेरा पेपर डी था, मेरा पेपर सी था। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो पेपर सवाल 200 के 200 वही थे, मगर एक एग्जामिनेशन हॉल में 4 मुख्तलिफ पेपर्स बनाए गए थे, सवाल मिक्स किए जाते हैं, उसी ऑर्डर में नहीं चलते हैं। तो मेरे पास एक फॉर्म का होता है, इनके पास एक और होगा, उनके पास, ताकि चीटिंग ना हो सके। मैं अपना पेपर अगर किसी को दिखाऊंगा उसको ये नहीं पता चलेगा किस नंबर का जवाब वो दे रहा है। दैट्स कॉल्ड ABCD। 200 के 200 सवाल वही हैं, सिर्फ नंबर आगे पीछे किए जाते हैं। सो देयर इज नो इशू वहां पे कि कोई उसमें भी प्रॉब्लम आई है। वी हैव नाउ चेक्ड द एग्जामिनेशन, दैट इज डन, MD-CAT इज आउट, द रिजल्ट्स आर आउट। हमने सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को एंड फेडरल गवर्नमेंट को रिजल्ट्स भेज दिए।
क्योंकि उनकी पब्लिक एडमिशन्स होनी है, नाउ दे कैन यूज़ इट फॉर द पब्लिक एडमिशन्स. हमने नम्स को भी दे दिया है, हमने आग खान को भी भेज दिया है कि वो भी अपने बच्चों का भी एम डी कैट की बेसिस पे एडमिशन्स कराएंगे. बकिया जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनका सेंट्रल एडमिशन पोर्टल इंशाल्लाह कल खुल जाएगा, सो चिल्ड्रन कैन स्टार्ट अप्लाइंग फॉर प्राइवेट कॉलेजेस एज वेल. ये एडमिशन प्रोसेस चलेगा 14 तारीख तक. पब्लिक सारे कॉलेजेस को अपनी एडमिशन्स कंप्लीट करनी है. जैसी वो करेंगे 15 से इंशाल्लाह प्राइवेट कॉलेजेस की मेरिट्स खुल जाएंगी, वो अपनी एडमिशन्स उनको क्लोज करनी है, उनके पास भी 2 हफ्ते होंगे ताकि ये फरवरी में द एडमिशन्स आर कंप्लीटेड और उसके बाद हम लोग आगे चल सकें. सिंपल एक कंसर्न था कि एमडी कैट का जो ये है पेपर बहुत मुश्किल है या आसान है, वो तो एक बात सामने आ गई. 67,924 have passed in Pakistan, so that's a very high number, that's more than 55%. so ये तो इशू आई थिंक has now been put to bed. दूसरी चीज़ ये है कि देखिए 18,500 टोटल मेडिकल डेंटल सीट्स हैं पाकिस्तान में, 67,900 बच्चे पास हुए. इसका मतलब है कंपटीशन लेवल पर सीट इस वक्त देयर इज मोर देन 3 स्टूडेंट्स फाइटिंग फॉर 1 सीट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांटेड, कंपटीशन, बट कंपटीशन एट द बेस्ट क्वालिटी लेवल्स. एक और एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग 2-3 दिन के बाद पब्लिक कर देंगे, आप लोगों को भी दे देंगे. वी आर डूइंग अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ प्रोविंशियल वाइज ऑल्सो एंड रीजनल वाइज, ताकि ये भी लोगों को नज़र आ जाए कि हर प्रोविंस ने क्या किस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, उनके बच्चों ने किस तरह से किया है. क्योंकि आप ये ख्याल रखिए नेशनल लेवल के ऊपर दिस इज़ द ओनली एग्ज़ाम एट नेशनल लेवल राइट आफ्टर सेकेंडरी स्कूल. तो ये आपको एक अंदाज़ा दे देता है कि सेकेंडरी एजुकेशन आपकी हर जगह पे क्या है. मैं आपको एक चीज़ बता दूं, गिलगित बल्तिस्तान माशाल्लाह वाज द बिगेस्ट सरप्राइज फॉर मी, ओवर 70% पास्ड. दैट्स अ वेरी वेरी हाई मार्जिन फॉर गिलगित बल्तिस्तान. यू नो दैट्स व्हाट वी नीड टू सी. AJK again very high pass percentages. So वो हम उसकी स्टडी करके आप सबके हवाले कर देंगे. इसके अलावा आखिरी चीज़ जो एक और है वो ये है कि बिफोर आई गो फर्दर जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस एंड बिफोर आई इंट्रोड्यूस ऑल्सो थैंक हमारी जो टीम थी इसमें इन्वॉल्व थी. मेंबर जो हमारे एग्जामिनेशंस हैं, डॉक्टर काजी साहब ही जॉइंड अस, मेंबर IT रज़ा शाह साहब, एंड आवर एग्जीक्यूटिव मेंबर एंड ऑल्सो मेंबर एजुकेशन मोइन अली साहब. I'd also like to thank कि NUMS के वाइस चांसलर साहब और प्रो वाइस चांसलर who helped us immensely because they were part of our team, and ये इन सब की वजह से ये एग्ज़ाम हुआ जिस तरह से हुआ है माशाल्लाह, एंड कंप्लीट हो गया है, एंड द रिजल्ट्स आर आउट. सो दीज आर द टीम्स नाउ वर्किंग. हम लोग मोर और लेस अब आज के बाद डिफ़ॉल्ट में बैठे हैं यहाँ पे, मगर बेसिक चीज़ ये है जी कि गोइंग फॉरवर्ड द की इशू नाउ इज़ गोइंग टू बी कि इस MD कैट से हमने सीखना है. एंड वन थिंग द काउंसिल एज अ काउंसिल वी हैव ऑलरेडी एडवाइज द एकेडमिक बोर्ड, क्योंकि स्ट्रक्चर उन्होंने बनाना है इंशाल्लाह अगले साल के MD कैट का. लुकिंग एट द रिजल्ट्स वी हैव सीन, वी हैव एडवाइज देम कि जी अगले साल से वी वुड लाइक एन MD कैट विच इज़ ऑनलाइन एंड इंटरनेशनली अवेलेबल, एंड इट शुड बी अ प्रॉपर असेसमेंट बेस्ड प्रोग्राम रादर दैन जस्ट FAC करिकुलम्स. हमें मेडिकल स्कूल में वो बच्चे एप्टीट्यूड के हिसाब से लाने हैं जो कि मेडिकल प्रोग्राम सर्वाइव कर सकें, जिनको शौक भी हो और एप्टीट्यूड भी हो. इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोग्राम्स टू गेट थ्रू अंडर ग्रेजुएट लेवल. सो इंशाल्लाह इसको वी विल यूज़ एज द बेस टू डेवलप द फ्यूचर MD कैट्स, एंड दैट होपफुली विल बी ऑनलाइन. सो 1,25,000 छोड़िए, मेरी तरफ से 2.5 लाख बच्चे इंशाल्लाह आके MD कैट अटैम्प्ट करें. इट्स अ रिज़ल्ट फॉर अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड कि मैं जाऊँ मेडिकल स्कूल या ना जाऊँ, वो भी एक ज़रूरी है असेसमेंट करना. तो ये है जी. एंड उसके अलावा जस्ट टू लेट यू नो, बिकॉज इट वाज अ नेशनल लेवल एग्ज़ाम, एक हमने किया है इंशाल्लाह, वो मंडे को वी विल बी अनाउंसिंग द टॉप स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स हु टॉप्ड द MD कैट. आई एम नॉट गिविंग द नेम्स टुडे, बट टू माई अंडरस्टैंडिंग देयर 3 जॉइंट who topped, correct? 3 बच्चे who jointly topped. So they will be presented to the public inshallah next week, and they will be recognized for what their achievements also. ठीक है जी. आपने जिस तरह भी बताया इम्तिहान के हवाले से, इम्तिहान से कबल भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें हमने ये खदशात का इज़हार किया था कि NUMS का लास्ट टाइम जो एक्सपीरियंस था वो ठीक नहीं था, NTS का एक्सपीरियंस ठीक नहीं था. उसके बावजूद आपने यकीन दहानी कराई नहीं जी 100% रिजल्ट ठीक होगा, लेकिन उसके बावजूद ये कैसे हो सकता है कि जो बच्चा 12 साल इम्तहानात दे रहा है
और वो सैकड़ों की तादाद में अपना रोल नंबर गलत लिख देंगे, ये कैसे मुमकिन है? 1,21,621 बच्चों में से 600 कुछ बच्चों से ये गलती हुई है। ये नॉर्मल बात है, ये कोई इतनी हाई परसेंटेज नहीं है, बहुत छोटी परसेंटेज है। और ये आप प्रिजम्पटिव बात कर रहे हैं कि जी जो 12 साल से कर सकता है वो गलती नहीं कर सकता। इंसान है, आप भी गलती करते हैं, मैं भी गलती करता हूँ, तो बच्चा भी गलती कर सकता है। ऐसी कोई इसमें अनहोनी बात नहीं, इट्स बीन चेक्ड। यही वजह थी, कंप्यूटर जनरेटेड था, इसका ना नम से कोई ताल्लुक है ना NTS से कोई ताल्लुक है। नेक्स्ट ईयर अपेरेंटली सर ये लग रहा है कि जैसे मिस्टेक सारी की सारी हुई स्टूडेंट्स के पार्ट पे है, तो स्टूडेंट्स तो इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि अब क्या पता कि ये कंफ्यूजन हमारे पार्ट पे है या आपके पार्ट पे है। आपने तो अपनी तरफ से कह दिया कि उनकी पार्ट पे थी और उसको करेक्ट कर रहे हैं। सेकंड दूसरी बात ये कि 10,000 एप्लीकेशन सर आ चुकी हैं रीचेकिंग के लिए। अब आप इसको अनाउंस करेंगे और एडमिशन स्टार्ट होंगे, ये 10,000 लोग ये कैसे सेटिस्फाई होंगे आपके रीचेकिंग के? रीचेकिंग नहीं जी, रिकाउंटिंग। MCQ का इम्तिहान रिकाउंट होता है, स्कोर होता है, रीचेकिंग होता है प्रोज का इम्तिहान। ओके सर, आप रीकाउंट करेंगे तो उसको आपके पहले अनाउंस किए हुए रिजल्ट पे जब खदशात हैं तो रीकाउंटिंग पे वो कैसे सेटिस्फाई करेंगे आप? नहीं, मेरी बात सुनिए। 10,000 एप्लीकेशन इज अ बिग नंबर। नो नो, नॉट अ प्रॉब्लम। मैं कह रहा हूँ आपको 1,21,000 रिकाउंट करवाना चाहते हैं, मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। मैं आपको सीधी बात बता रहा हूँ। देखिए, एक बच्चा है, उसने इम्तिहान दिया है, जिस बच्चे के 195 आए होंगे वो तो नहीं रिकाउंट करवा रहा ना, वो तो नहीं करवाएगा। ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज राइट। एक बच्चे ने वही पेपर दिया है, उसके 100 मार्क्स, बिकॉज उसके 100 मार्क्स हैं, उसको, ये देखिए नॉर्मल बात है, हम सब इंसान हैं, हम भी कर चुके हैं, हम भी इम्तिहान दे चुके हैं। जब आप अच्छा नहीं करते इम्तिहान में, यू हैव टू ब्लेम समबडी एल्स, ठीक है। पेपर वही है, सब बच्चों ने दिया है। अगर 67,000 चिल्ड्रन हैव गॉट मोर देन 60%, सम हैवंट, ये कोई ऐसी बात नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि हर बच्चा पास होगा और हर बच्चा 90% लेगा। आके चेक करवा लें अगर उनको शक है। मगर सवालात तो वही हैं, जवाबात भी वही हैं। जो बकिया ने दिए हैं, जिसने 195 लिए हैं, उसने भी वही सवालात के जवाब दिए हैं और उसको 195 मिले। तो अगर आपको 100 मिले हैं तो इसका मतलब है कोई आपकी तरफ से कोताही है भाई। इम्तिहानों में होता है, कौन सा इम्तिहान है दुनिया में कि सब लोग 90% लेते हैं? ये कौन सी अनहोनी बात? कंसर्न क्या उनको होना चाहिए? सिर्फ सिंपल कि उनकी स्कोरिंग गलत हो गई है, रिकाउंट हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ये इशू होता है। सर आप एक्सप्लेन करें सारी चीज़ें, बड़ी ब्रीफली आपने बताई, हर चीज़ आपने बताया कि ऐसे ऐसे होता है। कि मीडिया के लिए भी ऐसा बंदा रखें जिसको पता हो, चीज़ें हो, जो आपकी तरह एक्सप्लेन करे, हमें भी पता चले, नॉलेज हो। सर मैं आ जाता हूँ, आप हुक्म दीजिए, मैं आप तो लेकिन कम अज कम तर्जुमान है ऐसा बंदा एक्टिव हो जो हमें जी, मौजूद है, सरमद साहब मौजूद हैं, आपके सबके पास उनका नंबर है हमारे दफ्तर। तो 2 दिन बाद रिप्लाई करते हैं जब हमें पता चलता है। चल, अच्छा ये देखिए, अभी MD कैट का मामला है, वो आप मुझे बताइए जी। बाकी हम बात हम अगर मिसाल के तौर पे We'll- क्वेश्चन करें तो किससे करें जिसके पास रिस्पांस ही ना हो? विल सेट इट आपने अप। 2 दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम पिछले 2 दिन से ट्राई कर रहे हैं। हाँ। सरमद साहब तो ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, वो तो जवाब नहीं देते। ग्रेड 22 के अफसर नहीं है जी, नहीं अफसर है ना जी, वो नहीं जवाब अफसर। देते हैं ना। अच्छा देखिए, वी डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व ऐसा विद आप रिपोर्ट कर रहे हैं, वी विल डू कर रहे हैं। आपके पास मेरा, देखिए आप सबके पास मेरा नंबर आपका है। नंबर बिजी होता है, परसों मैंने कॉल किया, आपने नंबर बिजी कर दिया। आपके, मेरे पास 500 कॉलें आ रही थी, मेरे पास 500 कॉलें आ रही लेकिन थी, ये- वो भी मैं आपको दिखा ये देता बात हूँ। है ये पॉजिटिव चीज है, कोई ऐसी हम तनकीद नहीं करें, हम We'll- ये करें जिस तरह आपने हमें ब्रीफली एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छी बात है। इंशाल्लाह। कम से कम ऐसा बंदा हो जो हमें एक्सप्लेन कर सके। इंशाल्लाह आपके लिए पूरा मीडिया सेंटर भी बन रहा है, थोड़ा से, इट्स एक्चुअली बीइंग बिल्ट फॉर यू, आप देख लीजिएगा। इतना सरकारी खर्चा ना करें। पहली बात आपको बता दूं, ये सरकार नहीं है, यहाँ पे कोई पैसा सरकार का नहीं लगता है, आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये मैं सरकारी खर्चे नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए वक्त बदल गया, अब थोड़ा से आप लोग भी अगर आएंगे लेवल प्लेइंग फील्ड पे आपको बात करेंगे, मैं खुशी से आपको बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। सर आप कुछ बच्चों ने ज़ाहिर है हमें भी कुछ शिकायत भेजी है, ज़रूर बताइए। उनमें से एक मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ क्योंकि ये काफ़ी जी, जी। मुझे लग रही थी। चूँकि आपने कहा कि कुछ टेक्निकल एरर हो सकते हैं, तो एक बच्चे ने ये लिखा कि MD कैट इम्तहानात और रिजल्ट प्रोसेस के दौरान PMC के कुछ अफसरान करोड़पति हो गए। आगे उन्होंने वजह लिखी है, PMC के कई अफसरान ने स्टूडेंट से लाखों रुपए लिए हाँ। इस टेक्निकल एरर के दौरान और नालायक किस्म के स्टूडेंट्स को मार्क्स देकर पास किया गया। इस पर एक आपका मौक़िफ़ मैं जानना चाहता हूँ। सरासर झूठ। और सर दूसरा ये आगे। बताइए कि कितना आपको यकीन है कि ये जो रिजल्ट्स या सारा ये प्रोसेस था ये कितना शफाफ था? 100%। और कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि 14 मार्क्स दिए गए और 7 मार्क्स दिए गए।
ये आसान लफ्जों में समझा दें, जैसे आपने कहा मैंने अभी कि ये- समझाया। सर, जैसे आपने कहा कि ये ग्रेस मार्क्स नहीं है, ये ग्रेस आपके मार्क्स नहीं साथ है। कुछ 14 सवाल थे, 7 सवाल थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि उनको एक पर्चा 14 है, क्यों दिए गए, इनको 7 क्यों एक पर्चा है, उसमें 200 सवाल उसको दिए ही नहीं गए। है। एक पर्चा, ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये जितनी एलिगेशंस है ना, इस मुल्क में हमारा प्रॉब्लम एक बन गया है। एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। उंगली उठा के कहना वो चोर है, उसने पैसे लिए, उसने ये किया, कोई एविडेंस नहीं, बस एलिगेशन लगा दी। हम तो यहां खड़े होकर दूसरी बात कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं जो हमने किया खुला है, आइए चेक कर लीजिए, बताइए। देखिए, जिस आदमी ने गड़बड़ की होती है वो अपने आप को खोलता नहीं है। मैं तो इसीलिए रिकाउंटिंग खोल दी है, और इस रिकाउंटिंग का तो पहले 1000 रुपये फीस थी, वो भी हमने ज़ीरो कर दी है कि आओ चेक कर लो, कॉस्ट तो हम बेयर करेंगे। ये करते हैं कोई? अगर कोई शक होता है इस पेपर में तो करते, सवाल नहीं पैदा होता। ये सब करोड़पति ये अखबार की जीनत आप बना सकते हैं, ये सच्ची बात नहीं, ये झूठ है, सरासर झूठ। 100% कॉन्फिडेंस है ऑन दिस पेपर एंड द रिजल्ट। आगे 14 मार्क्स 7 मार्क्स बड़ा सिंपल है, सिंपल कॉमन सेंस समझ लीजिए। 200 सवाल हैं, 200 सवाल का पेपर है, उसमें से 14 सवाल ऐसे जो हमने खुद आफ्टर आवर एग्जामिनेशन एनालिसिस, और बाय द वे ये हर इम्तिहान में होता है एनालिसिस, फ़र्क पता है क्या है? पहले बहुत सारी एग्जामिनेशन बॉडीज़ हैं जो आपको बताती नहीं है, जो आपको पोस्ट एग्जामिनेशन एनालिसिस डिस्क्लोज ही नहीं करते, वो सिर्फ रिजल्ट देते हैं। ये सवाल आप कभी उठाएंगे नहीं किसी और के साथ, यहाँ पे उठाया जा रहा है क्योंकि हम लोग ट्रांसपेरेंसी फॉलो कर रहे हैं, वरना हम भी कर सकते थे। एग्जामिनेशन बॉडी है, हम कह सकते हैं कि नहीं जी हम नहीं बताएंगे, रिजल्ट आगे, बात खत्म, घर जाइए। नहीं किया ना, खोल दिया। खोला क्यों है? आइए तनकीद करिए, मगर फैक्ट्स पे रह के, ये हवा में ना स्टेटमेंट्स दें, हवा की स्टेटमेंट्स नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, 200 सवाल थे, 14 सवाल हमने खुद निकाले। जब हमने 14 सवाल निकाल दिए तो इसका मतलब है बच्चों ने स्कोर किया 186 नंबर में से, दुरुस्त। 186 नंबर में से भी मैं ये कर सकता था कि जी ठीक है, आपके जो 186 नंबर से नंबर आएंगे दैट इज योर परसेंटेज। अच्छा, अब उसकी अगर आपको परसेंटेज बनानी पड़ी तो मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स बता देता हूं, 5 अशारिया यानी 5 डेसिमल नंबर्स तक का नंबर बन जाएगा। इन बच्चों का आगे मेरिट बनना है। जब आप 5 अशारिया डेसिमल नंबर बनाने शुरू कर देंगे, मेरिट बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसके अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस का स्टैंडर्ड ये है कि या वो आप सवाल घटा दिए हैं तो वो नंबर गायब कर दें और उसको प्रोपोर्शनली कर दें मार्किंग, या जितने सवाल निकालें उतने नंबर हर बच्चे को दे दें, यानी कि हर बच्चे का सवाल का जवाब सही है। आप समझ? सो 14 नंबर दे देंगे। सो एवरी चाइल्ड स्टार्ट्स विद 14 मार्क्स, 14 मार्क्स से वो स्टार्ट होता है, और बाकी आपने 186 पेपर के सवालात उसके मार्क हो जाते हैं, उसमें से जो नंबर आ गए, बात खत्म। ये ग्रेस मार्क्स नहीं है, दिस इज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, कोई इसमें वो हमने कोई नई ईजाद नहीं की। आपने स्टूडेंट्स के मेरिट के एक हवाले से से अब बात आपके की। दो सवाल वो एक सर, आपने किर्गिज़स्तान की यूनिवर्सिटी को ब्लैक जी, किसको? किर्गिज़स्तान की जो यूनिवर्सिटीज उन्हें ब्लैक लिस्ट काफ़ी सारियों को, वहाँ पर जो उस पर इंशाल्लाह वैसे एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं आपको उसके डॉक्यूमेंट्स भी दे दूंगा। जो पहले से वहाँ दे रहे थे उनका क्या बनेगा? अभी काउंसिल के एजेंडा में वो है, नेक्स्ट वीक काउंसिल मीटिंग इज टेकिंग दैट अप। GOTV से सर, इधर शराब GOTV से जी शिराज, सर, आपने खुद अपने मुंह से जो आज़ाद कश्मीर और GB के लोग हैं उनकी तारीफ भी की, और पिछले रमज़ान के अंदर कुछ लोगों ने AJ के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने RMD के लिए अप्लाई किया था, और आज तक वो ठोकरें खा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनको परमानेंट। बताइए नंबर, बताइए नाम, बताइए नंबर बता दीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन नंबर है 5295। इस वक्त हम लोग ओवर 1000 लाइसेंसेस डेली निकल रहे हैं। सर, पिछले रमज़ान में मेरी अर्ज सुन लीजिए, पिछले रमज़ान का जब आपने जिक्र किया तो आप खुद सोच लीजिए आप क्या कह रहे हैं। मैं तो रमज़ान में नहीं था ना, मैं आपको सर याद दिलाने मैं पे नहीं ब्लेम कर रहा। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ कि अक्टूबर में हम लोग आए हैं, वी हैड थाउजेंड्स ऑफ पेंडिंग फाइल्स पेंडिंग, वो निकाली हैं। बहुत सारों में कुछ चीज़ें मिसिंग थी, उनको भी हमने वेरीफाई करवा के कर दिया है। कुछ अगर रह गए हैं आप नंबर लिखवा दीजिए, आई विल हैव इट चेक टुडे एंड यू विल नो टुडे। 5295 AJ के आपसे ले लेता हूँ मैं कॉन्फ्रेंस के बाद। इल भी आपको वेरीफाई हो जाएगा। मेरिट के हवाले से कहा कि मेरिट बहुत Right. टफ होगा, तो प्राइवेट सेक्टर में जो मेरिट स्टूडेंट जाएंगे वहाँ उन्होंने 20% मार्क्स अपने इंटरव्यू के रख दिए, तो वहाँ मेरिट क्या करेगा? वहाँ तो काफ़ी सारी चीज़ें पहले भी देखा गया प्राइवेट सेक्टर में, आगे भी नज़र आ रहा है कि वो जब अगर वो उन्होंने अपने अलग से फंडिंग रख दी और वहाँ से उनको मार्क्स मिल गए इंटरव्यू के, तो जो मेरिट वाला बच्चा है वो कहाँ जाएगा? मैंने पिछले, देखिए पहली बात,
میں نے پچھلے میرے خیال میں ایک ہفتے میں کچھ نہیں تو تقریباً 2000 اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مجھے خود میسج کیا ہے یہ وغیرہ، اور میں نے ان سے باقاعدہ بات کی اور جواب بھی دیا اور یہی سوال کا جواب دیا. اینڈ آئی ایم ویری ہیپی ٹو رپورٹ کہ بچوں کو سمجھ آ گئی. دیکھیے پرائیویٹ ایجوکیشن دنیا بھر میں پرائیویٹ ایجوکیشن ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی پرائیویٹ ایجوکیشن ہے. آپ جا کے لمس کو یا آئی بی اے کو یا پرائیویٹ کالجز کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ تم یہ کرو گے یہ کرو گے یہ کرو. انہوں نے کرنا ہے بٹ ذمہ داری بھی ان پہ ڈالیں، جواب دے بھی اب وہ ہیں. بچوں مجھ سے سوال کیا کر رہے ہیں؟ پہلا انہوں نے سوال کیا، انہوں نے کہا جی ہم بات سمجھ گئے ہیں، آپ نے فکس فی کروا دی ہے، ڈکلیئر کروا دی ہے. یعنی کالج کی مرضی ہے، کالج اگر کہتا ہے میں 12 لاکھ لوں گا اور 5 سال کے لیے فکسڈ ہے تو یہ فکسڈ ہے. اب بچے کو یہ پتا ہے کہ اگر میں نے کالج اے میں جانا ہے یہ میری کاسٹ آئے گی، اگر کالج بی میں جانا ہے یہ میری کاسٹ آئے گی. یہ بھی سمجھ آ گئی، یہ فکس کر دیا. دوسرا، اب ان کو ایک اور سمجھ آ گئی کہ ڈگری سے ڈاکٹر نہیں بننے والا، لائسنس کا امتحان دینا ہے. مطلب صاحب سیدھا مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی بات سنیے، آپ نے کہہ دیا ہم مرضی سے کالج سلیکٹ کر سکتے ہیں، ہم 5 کالجز سلیکٹ کر کے اس میں اپلائی کریں، اگر ہمیں ایڈمیشن نہ ملی کیا آپ ہمیں فورسبلی کسی اور کالج میں بھیجیں گے؟ میں نے کہا نہیں، آپ کی مرضی. انہوں نے کہا جی بیکاز ہم پھر 60 لاکھ روپے نہیں خرچ کرنا چاہتے، ہم اگلے سال پھر ٹرائی کر لیں گے. میں نے کہا جی 100 بسم اللہ آپ ٹرائی کر لیجیے. دیکھیے ہم نے بچوں کو اجازت دے دی، ان کے ماں باپ کو اجازت دی ہے. آپ لوگ فیصلہ کریں، آپ نے خرچہ کرنا ہے کہ آپ اس کالج میں جائیے جو آپ کے حساب سے صحیح ہو، اس کوالٹی کا ہو کہ وہ آپ کو 5 سال میں تیار کر دے لائسنس لینے کے لیے. نمبر 1. دوسری طرف سے جو 20% نمبر ڈالے گئے وہ تو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ٹھیک ہے جی. اگلے سال سے تو باقاعدہ یہ انہوں نے خود ہی کرنا تھا کالجز نے. اس سال تو یہ ایٹ لیسٹ کنٹرول لگا دیا کہ 80% کا جو میرٹ ہے وہ ہم ایک وقت میں ڈسکلوز کر دیں گے تاکہ سارے بچوں کو 50 کالجز میں پھرنا نہ پڑے انٹرویوز وغیرہ کے لیے، ایک جگہ ہونا پڑے، ٹھیک ہے. سو اس سال کے لیے اگلے سال انہوں نے خود، مگر فرق یہ کہ اگلے سال ان کو جنوری فروری میں سارے کالجز کو ڈسکلوز کرنا پڑے گا، اپنا کرائیٹیریا بچے سلیکٹ کریں. دیکھیے ہوتا کیا ہے دنیا بھر میں اور یہاں بھی یہی ہونے والا ہے، اور باقی آپ کے ہر سبجیکٹ میں ہو رہا ہے اس وقت. بچوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کالج میں جانا چاہتے ہیں. ہو سکتے ہیں کہ کچھ کالجز ہوں اس میں سارے بچے نہ جائیں، سیٹیں خالی رہ جائیں گی. تو ہم نے تو بڑا کلیئر کہہ دیا نا کہ جی سیٹیں بھرنے کا کوئی نظام نہیں ہے. جب ایڈمیشنز کلوز، ایڈمیشن کلوز، اس کے بعد صرف ٹرانسفرز ہو سکتے ہیں امنگس کالج. یعنی میری ایڈمیشن ہو گئی ہے لاہور میں، میں جانا چاہ رہا ہوں کراچی میں انڈر دی یونیورسٹی رولز ٹرانسفر کرا سکتا ہوں. سو یہ تو ہم نے لگا دی ریسٹرکشن. اب بچوں کی مرضی ہے نا، بچے نے پیسہ دینا ہے پرائیویٹ کالج کے لیے، فیصلہ کریں وہ کہ کس کالج میں جانا چاہتے ہیں اور کہاں جانا چاہتے ہیں، اسی کے حساب سے وہ ایجوکیٹ کریں گے. اس سے زیادہ تو وہ 20% مارکس آئی تھنک اتنا کوئی خاص فرق نہیں پڑنے والا میرٹ میں، وہ سامنے بات آ جائے گی. دوسری ایک خیال رکھیے گا کہ ایم ڈی کیٹ کا رزلٹ بھی آ گیا اور 80% کا بھی میرٹ ہوگا. سو اگر ان کی میرٹ لسٹ ہم چھاپ رہے ہیں 80% والی، تو اگر ایک بچہ تھا 5 نمبر پہ میرٹ پہ اور پتہ چلتا ہے بعد میں وہ کالج نے بائی دی وے جب کالج ایڈمٹ کر لے گا 100 اس نے وہ ڈکلیئر کرنی ہے اور ہمیں بھی بھیجنی ہے. تو اگر ایک بچہ تھا 912ویں نمبر پہ اور وہ ایڈمٹ ہو گیا اور 5واں نمبر غائب ہو گیا ہے تو سوال تو بہت آسانی سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے کیا کیا تھا. تو اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ جو وہ پرانی باتیں ہیں وہ مشکل ہو جائیں گی اب تھوڑی. جی آپ کا ایک سوال تھا کوئی. جی سر، بس briefly question کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ صرف 600 کیسز ایسے تھے آپ نے بتایا کہ جن میں رول نمبر کا ایشو تھا، ٹھیک ہے، اور 150 کیسز ایسے تھے جن کے نام کا مسئلہ تھا. تو اتنے چھوٹے سے نمبر کے لیے آپ نے پھر پورا ویریفائی کیا سر؟ کمپیوٹر آپ سکتے تھے کہ آپ کہہ سکتے تھے کہ یہ آپ ان کو کاؤنٹ نہ کرتے، یہ ان کے اسٹوڈنٹس کے پارٹ کوئی مسٹیک تھی. شاید میں تھوڑا سے زیادہ رسپانسبل آدمی ہوں، ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ جب میں ایک غلطی بھی دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں تو یہ چیز سوال اٹھے گا ہمیشہ کہ جی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے. انسان ہے اور کمپیوٹر بھی کمپیوٹر ہے، انسان کمپیوٹر بنانے والا بھی انسان ہے، ٹھیک ہے. تو غلطی جب ہم نے کرنی تھی 1,21,000 بچوں نے امتحان دیا ہوا ہے. I'd rather have a situation جہاں کسی بچے کو یہ سوال نہ اٹھے کہ یہ غلط ہے. تو سارا ویریفائی کروا لیا، کیا فرق پڑ گیا؟ 36 گھنٹے میں نے لوگوں کو جگائے رکھا ہے. رضا صاحب قاضی صاحب جاگے رہے ہیں 36 گھنٹے کے لیے، یہی ہوا نا. بٹ ایٹ لیسٹ وی میڈ شور. اور اس لیے میں آج جس کانفیڈنس سے آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ریکاؤنٹ میں نے فری کر دیا ہے، آئیں کروا لیں ریکاؤنٹ. تو یہ فرق. تھینک یو ویری مچ. یہ آپ کا سر یہ آپ جی میرا سرمد صاحب کو میں آپ کو ملا دیتا ہوں. سرمد صاحب کہاں ہیں؟